दिख रहा है बेटा सबको? Yes, ma'am. हम्म, बीच में अगर कनेक्शन टूट जाएगा तो आप बता दीजिएगा. जस्ट लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट. Here what you find is, in the case of an ellipse, you have length of major axis and length of minor axis. The point here is known as, is labeled as, if the length of major axis is a, then point this is labeled as a comma 0. That means y axis is 0 here. And if the length of minor axis is b, then this point is labeled as 0 comma b, with x axis being 0 here. Rest of the points you can get it from four-way symmetry. Rest of the 3 points, I repeat, in the case of circle you have eight-way symmetry, but in the case of ellipse you have four-way symmetry. Then that means, in order to draw an ellipse you will have to draw an entire quadrant, and rest of the points, rest of the three quadrants can be formed by interchanging the sign of the quadrants, right? Like you have a comma 0, so you have here minus a comma 0, and here 0 comma b, so here you will have 0 comma minus b. If this point is x comma y, then this point will be minus x comma minus y, this point will be x comma minus y, and this point will be minus x comma y, right? Now that means जहां पे आपने put pixel लिखना है वहां पर आप 4 बार put pixel लिखेंगे. In the case of an ellipse, the entire one quadrant is actually divided into two regions. Just look at this diagram here, region 1 and region 2. There is a boundary between region 1 and region 2. At that boundary, you draw the tangent. टेंजेंट होता है, वो लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे ही ज्वाइन करती है, मीट करती है. और कंडीशन क्या है यहाँ पे? इन रीजन 1 the slope of the curve is greater than minus 1, whereas in region 2 it is less than minus 1. Moving here, the implicit equation of an ellipse is b square x square plus a square y square minus a square b square equals to 0, where a and b are length of major and minor axis respectively. यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी अभिनव, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Now here, before we move on to this explanation, let us move on to this diagram. यहाँ देखो क्या हो रहा है. रीजन 1 ये रही, उसके बाद यहाँ पे रीजन 2 है. ठीक है. रीजन 1 में अगर आपने ये पिक्सल ब्लू चूज कर रखा है, then the choice is between pixel E and pixel SE. I hope the labeling is very clear to everybody. This is, you are moving one direction in east, you're moving here in one direction in east and one direction in south. So that means your x has been incremented by 1 in this case, and in this case the x has been incremented by 1 and y has been decreased by 1. So what is the condition? That in region 1 we increase x at each step, irrespective of the fact that whether we choose E or SE, but y may or may not decrease. That means if we choose pixel E, then y will not decrease, and if we choose pixel SE, then y will always decrease. Then in region 2, if you are at this pixel, then the choice between the pixel is S and SE. The labeling is very implicit here. You're moving only one direction in south. Here you're moving one direction in south and one direction in east. If you see these 2 points, here y has been decremented in both the cases, but x has been incremented only when you have chosen SE. So what you do here is that you will decrease y at each step, and x may or may not decrease. In the region 1, dx is greater than dy. That is why the rule is this. And in region 2, dx is less than dy. So the rule is this.
अगर ये रूल्स नहीं भी याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप साइड पर ये बना के देख लीजिए, यू विल गेट बैक टू दीज रूल्स ओनली। हाँ जी अजय, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अजय, so shall we move on to the next slide? Yes, ma'am. हम्म, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैंने छोड़ दिया। बाउंड्री जहां पर है वहां पे आप इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उस टेंजेंट पे आप 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब भी आप टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट वेक्टर। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन हम उतना ही मैथमेटिक्स यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे जितना हमारे लिए इस डेरिवेशन के लिए जरूरी है। द वेक्टर that is perpendicular to the tangent of the curve is called gradient. Again, I repeat, the vector that is perpendicular to the tangent of the curve is called as the gradient vector. Mathematically, gradient of f is equals to partial derivative of f with respect to x plus partial derivative of f with respect to y. f है आपके पास b square x square plus a square y square minus a square b square. So here gradient f of x comma y is equals to 2b square x plus 2a square y. I hope the derivation is clear to everybody. अब ये क्या आ जाएगा आपके पास? Just read this first. The vector that is perpendicular to the tangent of the curve is called as gradient. The boundary between the two regions is the point at which the slope of the curve is -1. ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की निशानी ये है कि यहाँ पे स्लोप जो है of the curve that is equals to -1. The point occurs when the gradient vector has a slope of 1. तो ऑब्वियसली वो तो 90 डिग्री पे है, तो वो कंडीशन होती थी ना m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 1। तो एक अगर -1 है तो दूसरा 1 होगा। इस पॉइंट पे क्या होता है, द ith एंड द jth कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये ग्रेडियंट वेक्टर था आपका, इसका ये ith कंपोनेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इसका jth कंपोनेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आपका ith कंपोनेंट है, ये आपका jth कंपोनेंट है। तो बाउंड्री पे ith कंपोनेंट और jth कंपोनेंट जो है वो इक्वल है। दैट इज 2b स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इंटू वाई, जिसको हम क्लियरली बोल सकते हैं 2 और 2 कट जाएगा, b स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू वाई। देन रीजन 1 में क्या होता है, the jth component of the gradient is larger than the ith component and vice versa in region 2. तो बाउंड्री पे तो वो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन रीजन 1 में jth कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द ith कंपोनेंट। तो अगर jth कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द ith कंपोनेंट तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b square into x is greater than, sorry, a square into y is greater than b square into x। तो यहाँ पे आ जाएगा a square into y is greater than equal to b square into x। अब ये वैल्यूज क्यों लिखी हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट है, पहले तो हम रीजन 1 में है, ये जो मिड पॉइंट है e और se के बीच में, ये मिड पॉइंट आपका क्या है, x plus 1 and y minus half।
तो आपने यहाँ किया, अगर वो पॉइंट था एक्स पी एंड वाई पी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई पी माइनस हाफ एंड बी स्क्वायर इंटू एक्स पी प्लस वन, बी स्क्वायर इंटू एक्स पी प्लस वन। अनिल क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, देखिए पहले यहाँ चलते हैं। यहाँ से देखो आप, आपके पास यहाँ पे ई और एस ई के बीच में आपको मिड पॉइंट को चूज करना है, मिड पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट, अगर ये जो ब्लू वाली डॉट है, इफ दिस इज एक्स पी कॉमा वाई पी, तो जो यहाँ एम आएगा वो आ जाएगा एक्स पी प्लस वन एंड वाई पी माइनस हाफ। अब हमारे पास कंडीशन क्या है रीजन टू में होने की, कि जो jth कंपोनेंट है दैट इज ग्रेटर देन द ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द ith कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे jth कंपोनेंट ये है, a स्क्वायर इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर इंटू एक्स। y की जगह लिखो yp माइनस हाफ और x की जगह लिखो xp प्लस वन। So you get this condition that a square into yp minus half should be greater than equal to b square into xp plus half if you are in region 1. As soon as this condition is false, you have moved to region 2. So you have moved to region 2. अंशिका यहाँ तक क्लियर है बेटा? अंशिका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then now अब बात करते हैं हम इक्वेशंस की रीजन 1 और रीजन 2 में, ठीक है? अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू दीज कैलकुलेशंस, आई जस्ट वांट टू शो यू दिस important पॉइंट्स टू रिमेम्बर। देखो, क्योंकि हम एलिप्स में दो रीजन्स में बात कर रहे हैं, तो हर रीजन के अंदर एक डिसीजन वेरिएबल डी होता है, जिसके साइन पे डिपेंड करता है कि हम ई या एस ई को चूज करेंगे। अब यहाँ पे मिड पॉइंट में देखिए, एक तो लेबलिंग है ई और एस ई, और एक लेबलिंग है एस एंड एस ई। तो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल अलग है और यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल अलग है। तो here the decision variable is d1 and here the decision variable is d2 in general. तो हम हर पॉइंट पे चेक करते हैं कि d1 का साइन क्या है, उस साइन के बेसिस पे हम ई और एस ई को चूज करते हैं। साथ ही हम एक और कंडीशन भी चेक करते हैं कि क्या हम रीजन 1 में ही हैं। अगर ऐसा है तो कंटिन्यू करते जाएं, ऐसा नहीं है तो अपना डिसीजन वेरिएबल चेंज करके D2 पे आए, and then the choice between the pixels will be S and SE. Moving to this slide again, at every iteration in region 1, we must not test the decision variable D1 but also see whether we should switch regions by evaluating the gradient at the midpoint between E and SE. ग्रेडियंट क्यों इवेलुएट करना है? क्योंकि जहां ग्रेडियंट का आयत और jth कंपोनेंट इक्वल हो जाता है, वहां आप रीजन 1 से रीजन 2 पे जा रहे हैं। When the midpoint crosses over into region 2, we change our choice of 2 pixels to compare from E and SE to SE and S. And we will have to initialize the decision variable D2 for region 2 to the midpoint between SE and S. अब बाकी के दो लाइंस जो है भाई इसके बाद कैलकुलेशंस के बाद पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अश्विन, यहाँ तक क्लियर है बेटा? नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट दिस डायग्राम। पहले सिर्फ इस डायग्राम पे ध्यान दो। देखो रीजन 1 में है, ये पॉइंट हमारा सिलेक्टेड है,
ये पॉइंट है हमारा एक्स पी एक्स आई कॉमा वाई आई, ठीक है। अब जो हमारा मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो गया ये, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x को एक डायरेक्शन में मूव किया एंड y को हाफ डायरेक्शन में मूव किया, हाफ डायरेक्शन नीचे आए, so this point will be xi plus 1 and yi this point will be xi plus 1 and yi minus half। जब हमने पिक्सल e चूज किया तो हमारा नया मिड पॉइंट, तो हमारी नई चॉइस ऑफ पिक्सल इज बिटवीन दिस पिक्सल एंड दिस पिक्सल, सो आवर न्यू मिड पॉइंट m विल बी दिस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये x एक और बार आगे गया, दैट इज x प्लस 2, और y हम नीचे गए ही नहीं, वो हम सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हैं, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस हाफ। पर अगर हमने पिक्सल ये चूज किया था, then the choice between the pixel SE choose किया था, then the choice between the pixel is this pixel and this pixel, so our new midpoint will be this। ये मिड पॉइंट आने के लिए x तो e से एक आगे आया ही है, दैट इज एक्स आई प्लस 2, और y पूरा एक यूनिट और नीचे आया है, तो वाई आई माइनस 3। अश्विन यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये पॉइंट्स क्लियर है। नाउ the decision variable di is equals to f of xi plus 1 comma yi minus half, ठीक है। f of x comma y होता है, तो x जो है हमारा f और di जो होता है d of m होता है ना, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, xi plus 1 comma yi minus half, तो हमने यहाँ लिखा f of xi plus 1 comma y और y minus half, उसको डाला हमने इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी हमारी, इम्प्लिसिट इक्वेशन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो उसको हमने इक्वेशन में डाला। अब इफ नाउ लुक एट द रूल, if d is less than 0, di is less than 0, then you are choosing pixel e, otherwise you are choosing pixel se। तो इफ d इज लेस देन 0, तो पिक्सल e चूज किया है, तो नया मिड पॉइंट हो गया आपका x प्लस 2 कॉमा वाई माइनस हाफ, दोनों को माइनस किया हमने, तो हमारे पास डेल्टा e आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3। भूमि यहाँ तक क्लियर है बेटा, भूमि। Yes, ma'am. Then if d is greater than 0, then you're choosing pixel SE। तो नया मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 कॉमा वाई माइनस सॉरी x प्लस 2 कॉमा वाई माइनस 3/2। जब दोनों को आपने माइनस किया तो आपके पास इक्वेशन आएगी डेल्टा SE बी स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3, यही ऊपर वाली टर्म, प्लस a स्क्वायर इंटू माइनस 2y प्लस 2। अब नेक्स्ट आती है इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी, शुरू कहाँ से करना है एल्गोरिथम, शुरू हमने यहाँ से करना होता है। ये पॉइंट जो होता है ये हमारा है इनिशियल वैल्यू विद 0 कॉमा b, दैट इज d is equals to f of m which is equals to f of x plus 1 कॉमा y minus half। तो x जो है वो है हमारा 0, तो हमने लिखा f of 0 plus 1 दैट इज f of 1 कॉमा y की जगह है b, तो b माइनस हाफ, तो आपके पास आ गया b माइनस हाफ। तो अब इसको आपने इक्वेशन में डाला, तो व्हाट यू विल गेट द क्वांटिटी एज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर बाय 4। a एंड b आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस। चिराग यहाँ तक क्लियर है बेटा, चिराग। Yes, ma'am. So moving on to next slide, that is in region 2। region 2 में अगेन ये देखने से पहले let us see this diagram। इनिशियली हमने ये पिक्सल को चूज किया हुआ है, ठीक है। अब
the choice between the pixel is S and SE. So that means our midpoint is this. ये जो midpoint है इसके coordinates क्या होंगे हमारे इस midpoint के? अगर ये xj और yj है तो हम x तो आधा ही आए आगे, तो दैट इज xj प्लस हाफ, और y जो है हम पूरा एक नीचे आए हैं तो yj माइनस हाफ. When you have chosen this pixel, say S, then the choice between the pixels is this and this. So new midpoint will be this, where you can see my cursor. This new midpoint is x तो हम उतना ही गए, आगे गए ही नहीं, लेकिन y एक और नीचे गए, तो xj प्लस हाफ एंड yj माइनस 2. Then further, अगर हमने SE चूज किया था, then the choice of pixel is between this pixel and this pixel. So इसमें हम x भी पूरा एक आगे आए हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक यूनिट है ना, और y भी हम एक पूरा नीचे आए हैं. So you have xj plus 3/2 and yj minus half, minus 2. ठीक है ज्ञानेश, क्लियर है यहाँ तक बेटा? ज्ञानेश, इज इट क्लियर टू यू? ज्ञानेश नहीं है क्या? एम आई ऑडिबल? यस बेटा मैम। ज्ञानेश हो आप? कौन हो? मैम अभिनव। हाँ, चलिए ठीक है. हर्ष बेटा ज्ञानेश यहाँ तक क्लियर है? मैं समझ रहा हूँ. अच्छा समझो हर्ष, और देखो यहाँ पे, if dj is less than 0 then you have chosen pixel SE. तो dj plus 1 जो है, that is the new midpoint, will be f of xj plus 3/2, ये रहा ना, f of xj plus 3/2 comma yj minus 2. जब आप दोनों मिड पॉइंट्स को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द टर्म एज b square into 2xj plus 2 plus a square into minus 2yj plus 3. If your dj is greater than 0, then you have chosen pixel S. In that case, your new midpoint will be xj plus half and yj minus 2. xj plus half and yj minus 2. So here, when you subtract the new midpoint with the old midpoint from the old midpoint, then sorry, if you subtract the old midpoint from the new midpoint, you will get the term as a square into 2yj plus 3. यहाँ तक क्लियर है हर्ष? हर्ष, Yes, ma'am. so shall we move on to the next slide? हाँ जी. So what we had read is that at every iteration in region 1, we must not only test the decision variable d1, but also see whether we are in region 1 or not. Once we cross into region 2, so the choice of pixel will change from E and SE to SE and S. And we will have to initialize the decision variable d2 for region 2. अब d2 की तो बात ही नहीं करी हमने कि d2 की वैल्यू क्या है. d2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखिए, ये था तो ये नया मिड पॉइंट था, दैट इज d2. तो दिस वाज x प्लस हाफ कॉमा y माइनस 1. कौन सा x? ये x. ये वाला जो था ये रीजन 1 में था. तो रीजन 1 का लास्ट पॉइंट अगर xp कॉमा yp था, रीजन 1 का लास्ट पॉइंट अगर xp कॉमा yp था, तो डिसीजन वेरिएबल d2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा xp प्लस हाफ कॉमा yp माइनस 1. अब ये काम हमें कब तक करना है? जब तक कि हमारी रीजन 2 खत्म नहीं हो जाती. तो रीजन 2 हमारी कब खत्म हो रही है? वी स्टॉप ड्रॉइंग द पिक्सेल्स, we stop drawing the pixels in region 2 when
y value of the pixel is equals to 0. ये आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे ये रीजन खत्म कब हो रही है, जब आप यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ आप कब पहुंच रहे हैं, जब आप यहाँ पहुंचते हैं। तो यहाँ x एक्सिस तो है लेकिन y वैल्यू आपकी 0 है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कब तक एलिप्स चलाना है हमने, जब तक कि y वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जुगल, इज इट क्लियर? जुगल क्लियर है यहाँ तक? हम्म, ललित क्लियर है यहाँ तक? ललित, इज इट क्लियर? अच्छा, I just want to ask other students, is it fair to give such students attendance who just come for the attendance and then they are out of the class? Is it not injustice to you guys who are here for at least 1.5 hours with me? What, matlab, just let me know what should stop me for from marking them absent. मैम अटेंडेंस काउंट तो नहीं होती ना ये वाली, देखो ऑनलाइन वाली? देखो अभी तो ये तो अपने आप को ना बेवकूफ बनाने वाली बात है। बिकॉज मेरे को तो बिल्कुल भी 1 पॉइंट भी नहीं फर्क पड़ता। मैंने तो तुम लोगों से पूछा भी नहीं है कि तुम्हारा ऑन रोल तो 44 है बट आते तो 20 के करीब बच्चे हो। तो मेरे लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता मुझे कि क्लास अटेंड करो या ना करो। बट यू आर डूइंग अ इनजस्टिस टू योर ओन सेल्फ। नंबर तुम्हारे अच्छे नहीं आएंगे, मतलब जो भी क्लास मिस कर रहा है उसके अच्छे नहीं आएंगे, है ना। एंड प्लीज बिलीव मी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा रेज किया कि अटेंडेंस तो कुछ मैटर ही नहीं करती इस टाइम पे। बट बताऊं कहाँ मैटर करती है, जब मैं आपका पेपर लूंगी या कोई असाइनमेंट लूंगी। असाइनमेंट तो देखो कॉपीड होता है, एक जना करता है बाकी सब लोग करते हैं, उसको देख के करते हैं। चलो असाइनमेंट आपको सबको अलग अलग भी दे दिया तो आप कॉपी नहीं करें, बट उस टाइम पे आई डू सी अटेंडेंस, and those students who are not regular in my class are penalized. ये तो क्लियर है, nobody can stop my hands from doing that, है ना। that is why I'm again telling you कि जो इस तरह से क्लास में नहीं आएगा, I will start marking them absent again. Why should I mark them present? क्योंकि मुझे तो लास्ट में ये देखना है, जब मुझे इंटरनल असेसमेंट 25 में से देनी है, तो किस बच्चे को 25 में से 25 देना है और किसके मैंने हर हालत में 18 से ऊपर करने ही नहीं है। तो तब मेरे पास अटेंडेंस जो है ना वो काम आती है। ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि ऑनलाइन मोड में अटेंडेंस का कोई नहीं है, अदरवाइज तो आपका अटेंडेंस पिछले 3 साल आप देखते ही आए हो। अटेंडेंस डज मैटर, ठीक है। कोई ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप करो ना करो क्लास अटेंड, बट हाँ, मेरे मार्क्स जो मैंने देने हैं आपको, रेंज विल बी क्लियरली डिसाइडेड बाय योर अटेंडेंस, योर प्रेजेंस इन योर क्लास, ठीक है। चलिए, नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस एल्गोरिथम, ठीक है। हियर यू हैव int a, int b एंड int value, ठीक है। ए जो है आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, बी लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, और वैल्यू जो हो जाएगा द कलर इन विच यू आर गोइंग टू डिस्प्ले योर एलिप्स। तो एक बार ये एल्गोरिथम देखें। इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली वन डिसीजन वेरिएबल, you have two decision variables, d2 and d1। d2 को, और जो x और y है वो इनिशियल पॉइंट आपका स्टार्ट होता है 0, b से। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू b, एंड डबल d1 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर बाय 4। ये यहाँ निकाला था, आई विल हैव टू मूव बैक अगेन एंड अगेन। d निकाला था ना यहाँ पे हमने, दैट इज f of m, that is x plus 1 and y minus half, where x is 0 and y is b। तो ये आपका डेरिवेशन का आंसर आया था कैलकुलेशन का,
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो ए स्क्वायर बाय 4 को लिखा है 0.25 इंटू ए स्क्वायर, राइट। अब ये देखो यहाँ पे D2 को इनिशियलाइज नहीं करा, जबकि हमने यहाँ पे D2 की वैल्यू निकाली है xp प्लस हाफ एंड yp माइनस 1। ये इसलिए इनिशियलाइज नहीं करा क्योंकि D2 में जो xp और yp है वो रीजन 1 का लास्ट पॉइंट है। दैट मीन्स ये जब रीजन 1 खत्म हो जाएगी तब x और y में क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे आपका D2 जो है वो इनिशियलाइज किया जाएगा। अब मूविंग टू दिस, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि रीजन 1 में हम कब तक काम करेंगे। रीजन 1 में हम तब तक काम करेंगे जब तक कि jth कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन ith कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट। मूविंग बैक टू दिस, jth component of the gradient is greater than ith component of the gradient। तो ये कंडीशन थी हमारी कि हम रीजन 1 में तब तक है जब तक कि a स्क्वायर इंटू वाई पी माइनस हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर इंटू एक्स पी प्लस हाफ। तो यही लिखा है a स्क्वायर इंटू वाई माइनस हाफ की जगह लिखा है 0.5 इज ग्रेटर देन b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तब तक हम रीजन 1 में हैं। अब रीजन 1 के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस थे, ई सिलेक्ट करना है या एस ई सिलेक्ट करना है। अगर D1 नेगेटिव है तो ई सिलेक्ट करते थे, नहीं तो हम एस ई सिलेक्ट करते थे। नया डिसीजन वेरिएबल हमने पीछे कैलकुलेट किया ही था और दोनों सूरतों में आपका x प्लस प्लस होता ही है, लेकिन y जो है वो सिर्फ तब डिक्रीमेंट होता है जब SE होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा डायग्राम बना के देख लीजिए, यू विल गेट दीज पॉइंट्स हियर ऑटोमेटिकली। देन एल्स में आपने ये लिख दिया। जब आपके पास ये एक बार खत्म हो गया तब आपने दोबारा पहले एलिप्स पॉइंट ड्रॉ किया यूजिंग फोर वे सिमेट्री, जहां पुट पिक्सल आपका 4 टाइम्स है। इसके बाद आप यहाँ आ गए, ये रीजन 2 है। रीजन 2 में आते ही सबसे पहले आपने डिसीजन वेरिएबल D2 को इनिशियलाइज किया। I told you that decision variable is xp plus half and yp minus 1। तो आपने x प्लस 1/2 को लिखा, x प्लस 0.5 एंड y माइनस 1 इसी तरह से लिखा। द इक्वेशन इज द सेम, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ यू हैव हियर व्हाइल रीजन 2 कब तक करना है, जब तक कि हमारा y कंपोनेंट 0 नहीं हो जाता। तो व्हाइल योर y इज ग्रेटर देन 0, in this case now you are selecting here, if D2 is greater than 0, then in that case you are choosing pixel SE। in that case x plus plus है और y minus minus है। अदरवाइज आपके पास पिक्सल S को सिलेक्ट कर रहे हो जिसमें आपके पास सिर्फ y minus minus है। Moving back, before you move back to again next iteration of while, आप ellipse point को कॉल करते हैं with x, y, value। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? पूजा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. पूजा पूजा। Yes, ma'am. Now moving to the ellipse program, तो अगेन यहाँ पे देखो एक एलिप्स पॉइंट करके बनाया है जिसमें आपने एक्स वाई तो लिया ही है, उसके अलावा एक्स सी और वाई सी लिया है। अगेन द सेम रीजन कि आपको ये जो पॉइंट होता है स्क्रीन का दैट इज 0,0, तो उसको स्ट्रेच करके यहाँ पे लाने के लिए आप एक्स सी और वाई सी कोऑर्डिनेट्स भी लेते हैं यूजर से। देन आपके पास ये मिड पॉइंट एलिप्स का प्रोग्राम है, द सेम जो अभी हमने डिस्कस किया था। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। मेन में आप पूछ लेंगे यूजर से एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट डालिए एंड वैल्यू ऑफ कलर डालिए एंड देन यू विल सिंपली कॉल योर मिड पॉइंट एलिप्स फंक्शन।
After you come out of this function, you have to do close graph also. Before that, you have to do initialization of the graphics driver and the mode. So this is what the output will look like. ठीक है, पूजा क्लियर है यहाँ तक? पूजा ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Now moving on to some questions which have been asked in your previous year's question papers. Given input ellipse parameters a equals to 8, b equals to 6 units, determine the raster positions along the ellipse path. I will request you again कि इसको करके जरूर देखिएगा, क्योंकि एलिप्स की जो कैलकुलेशंस हैं लंबी होने की वजह से गलती होने के चांसेस रह जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से you can see that the first point which came out to be 0,6, 1,6, 2,6, 3,6 and 4,5, 5,5, 6,4, 7,3 and अच्छा अभी तक यहाँ पे देखो आप हर बार ये चेक कर रहे हो, ये चेकिंग कर रहे हो, ये कंडीशन देख रहे हैं. एक तो डी की वैल्यू को चेक करते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साथ में ये भी चेक कर रहे हैं whether your yth component is greater than the x component. तो यहाँ पे आके आप शिफ्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए 244 is greater than 252, नो, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है. दैट इज व्हाई नाउ यू हैव स्विच्ड टू रीजन 2. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग D1 in the calculations, now you are taking D2 in the calculations. So these are the set of the points 0,6 से लेके 8,1. Similarly, you might get questions like this जहाँ पे A की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 6 है, और आंसर आप प्लीज टैबुलर फॉर्म में इस तरह से लास्ट में देंगे. ठीक है, समटाइम्स there might be some theory question. The question says, what is the condition that the ellipse scan conversion algorithm is used to divide the first quadrant of the ellipse into two regions? तो ये आपको मालूम है, ग्रेडियंट वाला आपको सारा एक्सप्लेन करना है. ठीक है, then I am not going into this, you know this condition. Till this condition is true, you are in region 1, otherwise you are in region 2. Second type of question, indicate raster positions that will be chosen while scan converting region 1 of an ellipse with major axis as 8 and minor axis as 5. The ellipse is centered at origin. तो क्या कर दिया, आपका ये जो क्वेश्चन जो 7 नंबर का बन कर सकता था उसको 4 नंबर का कर दिया, क्योंकि बोला है कि स्कैन कन्वर्ट सिर्फ रीजन 1 के लिए करना है. तो जैसे ही आपकी रीजन 1 की कंडीशन फॉल्स होती है, यू हैव टू स्टॉप. ठीक है, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स फॉर रीजन 2. देन you might also get it in this form कि ये ellipse की इक्वेशन है. मैम की आवाज नहीं आ रही. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो मैम. हैंड रेस करके देख, शायद हमारी भी नहीं जा रही, वो शायद दिखाई दे. कर ले मैम, शायद दोबारा आएंगी अब. तान्या चला लिया मैंने. क्या? चल गया लिप ग्राफ. रोद बढ़िया है. क्या चला रहे हो? रोद, अरे वही लिप ग्राफ भाई. रोद हो के कल 2 घंटा पिया तब जाके चला है वो भी. क्या प्रॉब्लम आ रही थी? अरे बेटा
एक मिनट। हाँ, वो देख लिया था क्वेश्चन। आई लॉस्ट माय नेटवर्क कनेक्शन। कहाँ तक देखा था? मैम वो जो आप एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे वो वहीं से बंद हो गई थी। सेकंड ऑक्टेंट वाला। अच्छा, एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन जो हैंड रिटन था। मैम प्रेजेंट नहीं हो रही स्क्रीन। मैम प्रेजेंट नहीं हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। उम्म, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन यहीं से कर रहे थे ना? मैम ये हो गया था। या था ना? देन उसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन और है। फिर ये है कुछ थियरी का क्वेश्चन अगर पूछना है तो सिर्फ एक ही थियरी का क्वेश्चन बनता है। What is the condition that ellipse scan conversion algorithm used to divide the first quadrant of the ellipse into two regions? I am not moving it into its answer. You know it very well now. कि ये आपकी कंडीशन होती है फॉर बीइंग इन रीजन 1। देन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इंडिकेट करना है रास्टर पोजीशंस दैट वुड बी चूजन व्हाइल स्कैन कन्वर्टिंग रीजन 1 ऑफ एन एलिप्स with major axis as 8 and minor axis as 5. The ellipse is centered at origin. तो क्या हो गया कि जो आपका 7 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन था उसको कट शॉर्ट करके 4 नंबर का बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि स्कैन कन्वर्ट सिर्फ रीजन 1 को करिए। तो जैसे ही रीजन 2 में फॉल करते हैं तो आगे के पॉइंट्स आपको नहीं निकालने हैं। आंसर आप हमेशा अपना टैबुलर फॉर्म में ही देंगे। ठीक है, ये भी एक तरह का इक्वेशन को लिखने का तरीका है। यहाँ पे a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू आपकी 10 है। देन सो दीज आर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर सर्कल का पूछ लेंगे तो एलिप्स नहीं पूछेंगे, अगर एलिप्स पूछ लेंगे तो लाइन एंड ऑल नहीं पूछेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ जी प्रख्यात, इज इट क्लियर? यस मैम। तो अच्छा, आप लोगों का उसका क्या रहा स्टेटस प्रैक्टिकल का लिब ग्राफ का? मैम इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, चल पा रहा है तान्या? यस मैम, एक सैम्पल प्रोग्राम रन करके देखा था तो वो रन हो रहा था। अच्छा ठीक है। किसका उबंटू पे करा है? हाँ वो बनतू पे है। और अच्छा, बाकी मेरे को किसी बता और का देना। चला है बेटा? बाकी किसी और का चला है? तो मैं आई हैड शेयर्ड यू शेयर्ड 2 numbers विद यू। अरुणिता एंड तरुण, दोनों लोगों के नंबर शेयर किए थे। उनमें से किसी से बात करके देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है आपको इंस्टॉल करते वक्त। कृतिका, हो गया आपका इंस्टॉल बेटा? हाँ जी बेटा, कृतिका आपका इंस्टॉल हो गया? यस मैम। मैम हो चल गया। पा- तो यस बताओ मैम तो चल सही। रहा है। 1 मिनट मेरे को बताओ कितने लोगों का रन होना शुरू हो गया है? सैंपल प्रोग्राम कितने बच्चों का रन होना शुरू हो गया? प्लीज से योर नेम। मैम मेरा हो गया पर थोड़ा सा एरर है अभी। अच्छा, तो एक बार वो अरुणिता मैडम से डिस्कस कर लो ना स्क्रीन शेयर करके। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ, हम्म। और किसका हुआ है? तान्या का हुआ है मैम और? तान्या। हाँ, बाकी सब लोग कब करेंगे? बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के। नाउ आई एम लीविंग यू। आप यू कैन कंटिन्यू विद योर प्रैक्टिकल। ठीक है, और आपस में भी बात करके देख लो
एक दूसरे की हेल्प लेके या तरुण सर या अरुणिता मैडम से बात कर लो, ठीक है? आई विल शेयर दिस एलिप्स पीपीटी विद यू ऑल्सो। एलिप्स वाला प्रोग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल लिस्ट में आपका नहीं है, बट फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आई विल नॉट फोर्स यू टू डू दिस प्रोग्राम, बट अगर कर सकते हो तो करके देख लो, ठीक है? मैम कोई आपने कुछ कौन से बोलना चाह रहा 5 प्रोग्राम बोले थे? है? लाइन, मिड हाँ, डीडीए लाइन, then midpoint. First program is DDA line, second program is midpoint line, third program is midpoint line with T thickness, fourth program is circle, fifth program is circle with T thickness, and now sixth program is ellipse. ओके मैम। ठीक है जी? हम्म। चलिए, so then bye for the rest of the day. ठीक है? Now we have our next class on. अब आपको अपना टाइम टेबल क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्लास है हमारी अब वेडनेसडे को सुबह है ना 10:45 पे, ठीक है? और ओके थर्सडे 8:45 जो हम 9 o'clock की शुरू किया करेंगे, ठीक है? मंडे एंड ओके मैम। थर्सडे विल स्टार्ट द क्लास एट 9। चलिए फिर आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कोई दिक्कत आए तो फिर बात कर लेंगे। ओके मैम। बाय एवरीबॉडी। बाय मैम। प्रेजेंट कर फटाफट। डू दी प्रेजेंटिंग बॉय।